Namaskar. नमस्कार। Welcome to our session. Today's session is on mental health. Mental health includes our emotional, psychological, and social well-being. It affects how we think, feel, and act. It also helps determine how we handle stress, relate to others, make choices. Mental health is also important at every stage of life, from childhood to adulthood. Over the course of your life, if we experience any mental health related problems, our thinking, mood, and behavior could be affected. Many factors contribute to mental health problem, including biological factors such as genes, brain history, brain chemistry, life experience such as trauma, abuse, family history of mental health problems. Today's topic is child development, three theories of child development, that is emotional, cognitive, and moral. Child development, don't hold back. Find out what is possible. Let me welcome to our guest for today, Mrs. Payal Malik, ma'am. Welcome to you, ma'am. Hello, everyone. Mindhealer.in. My friends, just note it down, mindhealer.in. It is an initiative by Payal ma'am. She is a qualified teacher and a human resource professional and a professional counselor. The mother in her and the professional woman in her made her explore psychology both as a passion and as a profession. Let me request Payal ma'am to introduce also. Over to you, Payal ma'am. हेलो एवरीवन। आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दामोदर सर ने प्रोवाइड की है कि मैं आप लोगों की फैमिली का एक पार्ट बन के वी कैन ग्रो एज अ हेल्दी कम्युनिटी। तो हम आगे एक इनिशिएटिव ले रहे हैं जो, तो उसमें मैं आपका पार्टिसिपेशन आपके साथ चाहती हूँ आपका। एंड आई वुड लाइक टू बी शेयर माय ओन एक्सपीरियंसेस, नॉट जस्ट एज अ काउंसलर और अ प्रोफेशनल, एज अ पेरेंट ऑल्सो, क्योंकि हम सब स्ट्रगल्स कर रहे हैं पेरेंटिंग में। every time we thought कि times is changing, so parenting styles are changing, तो we need to understand कि style changes के साथ साथ एक बच्चे की मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। सो पहले मैं थोड़ा, सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, मैं एक बार फिर भी बताना चाहूंगी एज ए सर कॉल्ड मी कि यस, आई वाज अ टीचर, अ काउंसलर, एज अ एचआर प्रोफेशनल, and of course now completely into mental health wellness। एंड mindhealer.in का इनिशिएटिव है कि वी आर टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ ऑफ अ इंडिविजुअल, चाहे वो मेंटल है, इमोशनल है, बिहेवियरल है, सोशल है, कॉग्निटिव है। सो हमारा इनिशिएटिव माइंड हीलर में इतना ही है, जिसके लिए हम पूरी कहते हैं ना, पूरे मन से हम इस मिशन पे लगे हुए हैं। एंड आई नो कि आप लोगों के लिए आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बेसिकली एक अभी आज हमने चाइल्ड डेवलपमेंट ये वाला टॉपिक क्यों चूज किया, बिकॉज पेरेंटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Yeah. इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग अ चाइल्ड और नर्चरिंग अ चाइल्ड, इट्स अबाउट वी आर क्रिएटिंग अ जीन जो हमारे आगे की जनरेशन्स में भी हम पास ऑन करेंगे। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल what we are developing, in which way we are growing them, and it is very important for our own mental health wellness thing। अगर हमें कहीं भी डाउट होगा अपनी किसी चीज पे, if we are not satisfied, we become an aggressive person or a disturbed or unsatisfied, तो वो सारे पर्सनालिटी ट्रेट समहाउ हम अपने बच्चे में इम्प्लांट करना शुरू कर देते हैं। सो आज माइंड हीलर के इनिशिएटिव से और सर के कॉपरेशन से हम आपके सामने हैं, एंड वी ट्राई टू हेल्प यू, गाइड यू एंड एजुकेट यू, जिससे आपकी पेरेंटिंग थोड़ा सा
और इजी, स्मूथ और एक प्रोडक्टिव बने. Very good. So Damodar said, Absolutely, absolutely. No, no, thank you. So, friends, not only this session, we will have another couple of sessions coming up, related to mental health, and thank you, Payal ma'am. She agreed to do few sessions with me every weekend. So, second episode, we are planning to do nurturing children's mental health, and another session, third episode, it would be coping strategies for handling daily stress and how it affects your relationship with your children. Also we have another episode will come, challenges and the stigma, right, that surrounds around us, and especially in special needs kids, right? So these are the 4 sessions planned. So let's not wait. I'm super excited to talk to Payal ma'am. I'll ask you a couple of questions. I think you talk about Mind Healer, and I have referred your website. It is super. The initiative which you have put it both at a personal level, professional, corporate, and you are addressing each part of the entire life cycle. Let it be a child to adult, then the people like us, those who are into corporate, especially IT professionals, right? And I'm sure we will, during the session, we will try to understand what is your initiative and all. Anything you want to, I have 3 questions related to child development, but before that, anything you want to talk about Mind Healer, your initiative? Yes sir. Mind Healer का existence कैसे start हुआ? Because in my teaching life or as a parents, what I have seen, प्रोफेशनली हम बहुत अच्छा ग्रो कर जाते हैं, बट अगर कभी हमारी लाइफ में इफ वी डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट EQ, इमोशनल क्वोशेंट, व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट देन सोशल स्किल्स, सोशल क्वोशेंट, अगर वो हमारा अच्छा नहीं होता तो IQ के बेसिस पे वी कांट सक्सीड एक्चुअली. सक्सेस मिलेगी बट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी एज ऑन अ इंडिविजुअल लेवल. तो वो सब चीजें कहाँ से इम्प्लांट होती है? वो द डे व्हेन अ चाइल्ड बोर्न. एंड नाउअडेज एज यू कैन सी कि एवरीबडी इज इन स्ट्रेस. जिससे भी बात करो, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मेरे बच्चे ने परेशान कर रखा, मेरी जॉब में परेशान हूँ, मैं बहुत. तो वो कहीं ना कहीं वी डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल रेगुलेशंस, social quotient, to how to get relaxed, how to develop bonding, how to nurturing ourselves also. It's not just about child. If we are failed to nurture ourselves and we are not able to work on our inner peace, then how I can help others? That is the main thing. So everybody is doing that, and parents ka complaint aata tha, and then uske baad of course being a mother, my challenges was there. So I understand कि सक्सेसफुल होना एक बार को बच्चा कर ही लेगा लाइफ में, कुछ ना कुछ ही विल अचीव और शी विल अचीव, बिकॉज इंटेलिजेंस दे डू हैव. बट अगर वो कहीं सोशल डेवलपमेंट उसका ठीक से नहीं हुआ, यहाँ पेरेंट्स का उनके साथ बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, पेरेंटिंग स्टाइल नॉट नहीं है, तो इट कुड अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड एज वेल एज इट विल इम्पैक्ट नेगेटिवली टू द होल फैमिली. अभी आप देखते हैं कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल 12 साल 13 साल का, सुसाइड कर लिया, ये कर लिया. कहाँ से ये थॉट्स आ रहे हैं? और उसके बाद पेरेंट्स कितना ट्रॉमा में और गिल्ट में जा रहे हैं. एंड इट विल नॉट स्टॉप जस्ट इन दिस बर्थ. ये हमारे जीन्स में आगे पास ऑन होके जाएगा, दैट ट्रॉमा. So how to take care of the all things, what we are trying to do in our society and what kind of society we are creating, that also we need to think na. So job is not just a part ki जाके काम करना है, पैसा कमाना है. This is also our job. What kind of population we are producing, we are guiding them in which way, we are nurturing them in which way. तो वहां से फिर मेरे को समझ में आया कि उसके लिए फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ फर्स्ट, हु आई एम, व्हाट आई वांट, वेयर आई एम रॉन्ग,
ये सारे स्किल्स कहाँ से आते हैं? ये सारे स्किल्स आपको आपके पेरेंट्स देते हैं। पेरेंट्स देते हैं, करेक्ट। या तो आपको वो देते हैं, या द बिहेवियर दे आर डूइंग विद ईच अदर एज अ स्पाउस, और माय मदर एंड फादर का जो आपस में रिलेशनशिप है कैसा है, उनका अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ कैसा है, वो सोसाइटी में कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये सब एटीट्यूड हम अपने हाँ पेरेंट्स जी, या अपनी फैमिली को लेके आते हैं। हाँ So जी, हाँ जी, that is, it is very important. Intelligence will develop with the age, with increasing, you can say, and completing the each and every level of education. But ये एकदम से आप इम्प्लांट नहीं कर इम्प्लांट नहीं सकते कर हैं। सकते। You can't. हाँ, तो इसके लिए भी टाइम, अभी आप देख रहे होगे सर, बहुत से बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास ज्वाइन करवाना है, सोशल स्किल डेवलपमेंट क्लास ज्वाइन कराना है। इवन इन कॉर्पोरेट्स यू हैव सीन कि हाँ जी, ईक्यू बेसिस वर्कशॉप्स हो रही हैं, सोशल स्किल बेस्ड वर्कशॉप हो रही। हाँ जी। क्यों जरूरत पड़ रही है हमें इनकी? क्यों पड़ रही है? कहाँ हम लैक कर रहे हैं? तो वहां से मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने अच्छा, लिए दिखी कि हाँ, मैं प्रोफेशनली भी आई कैन डू समथिंग, I can help people, and it is my social and moral responsibility also, being a part of this society, कि मैं सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दूं। तो माइंड हीलर में we work not just on the psychological need, we help you about to taking care of your lifestyle, your diet, योर फिजिकल हेल्थ। हम सारे एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं ताकि आप एक हेल्दी एंड हैप्पी इंडिविजुअल की तरह अपनी लाइफ को कैरी फॉरवर्ड कर सके। सुपर सुपर। दैट इज ग्रेट टू नो अबाउट माइंड हीलर। मेरा एक सब्सिक्वेंट क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मेरा बारे में पूछ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ व्हेन आई वाज चाइल्ड, हमारा ये गैजेट नहीं था। आई एम डिजिटल यस। एसेट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। एंड हम लोग क्या करते थे, खेलने के लिए सुबह जाते थे, फिर आके खाना खा के स्कूल जाते थे, आके फिर खेलने के लिए जाते थे, हम लोग खेतों में खेलते थे, कोई भी है, गिल्ली डंडा हो, क्रिकेट हो, वॉली, फुटबॉल, व्हाट एवर, राइट। वहां पे हमारा फिजिकल मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान हुआ करता था वो टाइम पे, ऑटोमेटिकली, जॉइंट फैमिली में हम लोग ग्रोन अप, राइट। एंड पेरेंट्स का भी इतना टेंशन नहीं था, मेरा बच्चा है, हाँ वो कहीं है, सुरक्षित है, राइट। And then we have slowly migrated or transition ourselves to digital. So actually if you see my generation, your generation, we are fortunate that हम लोग नॉन डिजिटल एंड डिजिटल दोनों एक्सपीरियंस किया। लेकिन अभी अगर हमारा बच्चे, अभी जो दिस जनरेशन जो मिलेनियम बोलते हैं हम लोग, दे आर born and brought up in only digital era, so उसमें आपने देखा होगा, I mean how the kids, I mean 6 months, 8 months, even 1 year kids, they get addicted to digital asset, right? It's very bad actually, so मेरा एक क्वेश्चन है, what is that social development happening and how it is related to child's development and why it is important that parental care, जैसे आपने बताया, right? जैसे पहले जमाने में हमारा, I don't know my where my parents used to tell me है क्या कर रहे हो, हम लोग ऑटोमेटिक करते थे, पढ़ाई भी ऑटोमेटिक होता था, ट्यूशन जाते थे, स्कूल जाते थे, खेलने के लिए जाते थे, इट वाज a different era. Now it is totally different era. That's why we find this mental health, तो मैंने कभी बचपन में सुना नहीं, मेंटल वेलनेस के बारे में कभी सुना नहीं है, राइट। सो तो मैडम आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, व्हाई इज सोशल डेवलपमेंट, व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट, हाउ इट इज रिलेटेड टू चाइल्ड डेवलपमेंट एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट दिस डेज। ओके। तो सर, सोशल डेवलपमेंट जैसे अपने में वर्ड ही सोशल आ रहा है, एंड वी ऑलवेज यूज दैट फ्रेज कि वी आर अ सोशल एनिमल। ठीक है, वी आर, एक जानवर को नहीं पता हाउ टू ईट, हाँ वेयर जी, टू गो फॉर द पर्सनल वर्क एंड हाँ वेयर जी, टू डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, बट वी आर ट्रेन्ड इन देम बिकॉज वी हैव बाउंड्रीज, वी हैव रिस्ट्रिक्शंस, वी हैव प्लेस फॉर ईच एंड एक्टिविटी। एंड हर एज के लिए हमारी एक्टिविटीज प्लान्ड भी होती हैं, रिक्वायर्ड भी होती हैं। तो अब सोशल, वही है सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर कि हम कैसे अपने हमारे, इट्स अबाउट आवर इमोशंस, इट इज अबाउट आवर बिहेवियर, इट इज अबाउट अटैचमेंट। अब ह्यूमैनिटी और इम्पैथी कहाँ से आएगी अगर मैं को पता ही नहीं है व्हाट इज इमोशंस। हाँ जी, अभी ज्यादा देर अगर मेरा बच्चा गैजेट पे, जिसके भी, अगर आपने भी पेरेंट्स देखे होंगे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द काउंसलर एक्सपीरियंस, आपने भी अपने आप फ्रेंड हाँ सर्कल जी, या फैमिली में आपसे लोग शेयर करते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा अग्रेसिव हो गया है, उसको फोन या मोबाइल पे रखो या लैपटॉप पे रखो तो ही विल बी हैप्पी और शी विल बी हैप्पी, अदरवाइज वो बहुत ना रिबेलियस बिहेवियर करते हाँ जी, हैं, वो बहुत टेंट्रम करते हैं। व्हाई दे आर डूइंग? बिकॉज
जिस चीज के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, सपोज दे आर इंटरेक्टिंग विद दिस पेन, Yeah. इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, तो Yeah. उसके रिएक्शन और रिस्पॉन्ड तो मिलने हैं नहीं, तो वो वन साइडेड रिएक्शन और रिस्पॉन्ड देना सीख जाते हैं. इन दैट वे Okay. दे डोंट नो हाउ टू कॉम्प्रोमाइज, why to compromise, how to adjust, where to adjust, how to react, how to respond. How to respond. वो सब चीजें हैं नहीं, बिकॉज कंट्रोल उनके हाथ में है. हाथ में. ठीक है. लेकिन इफ वी बोथ आर टॉकिंग, अभी भी अगर आप देखें, आप जब बोल रहे हैं आई हैव टू लिसन हाँ जी. एंड देन आई हैव टू आंसर यू, ऐसा नहीं आपने जो मुझे पूछा मैं उसका कुछ और आंसर दे दूंगी, बिकॉज आई डोंट हैव कंट्रोल इन माय हैंड. अभी बच्चों के साथ क्या हो रहा है, जो आपने अपने बारे में बोला, हमारे टाइम में ऑब्वियसली पेरेंट्स वर नॉट वरीड. उसका कारण ये भी था बिकॉज सर हमारे टाइमिंग सेट थे एंड वी आर फोकस्ड ऑन द एजुकेशन पे के साथ साथ वी आर डूइंग द फिजिकल एक्टिविटीज, जहां पे हमारी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो पॉजिटिव वे में चैनलाइज होते थे, जो कि हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को भी डेवलप करने में, हमारे क्रिटिकल माइंड को डेवलप करने में हेल्प करते थे. बिकॉज सोशल स्किल, जब यू आर टॉकिंग विद समवन, यू आर having some kind of relationship with someone, so you need a critical thinking also, okay, what is right, what is wrong, how to behave, which kind of behavior is right. अभी बच्चों को वो एक्सपोजर का क्या कहते हैं, एक तरह से ऑप्शन ही नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज दे आर सिटिंग इन अ रूम स्पेंडिंग टाइम विद द गैजेट्स. स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, एंड आफ्टर कोविड द सिचुएशन इज वेरी बैड. ठीक है, क्योंकि एंड सेकेंडली मोस्टली अगर मैं देखूं तो मेरे पास जिस तरह के पेरेंट्स आते हैं, दे डू हैव सिंगल चाइल्ड, जिनके ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनका सिंगल चाइल्ड होता है, बिकॉज बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग. तो दे आर providing the resources and they expect from the child कि we are providing you the resources, so this is your responsibility to become a best human being. But they are not machine जहां पे आप कमांड को रिकॉर्ड कर दोगे and then the machine will start responding in that way. They are human, they do have a critical mind. अगर आपने टाइम पे उसको ठीक से करेक्ट एजुकेट नहीं किया तो इट कुड बी डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो, बिकॉज वो सेल्फ लर्निंग में चले जाएंगे एंड बीइंग अ किड जो भी उन्होंने नेट पे सर्च किया, सर्फ किया, जो आया वैसे बिहेव करना स्टार्ट कर दिया. हाँ. अभी अच्छा, दूसरा सोशल स्किल्स में क्या आ जाता है कि पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप कैसा है. अगर पेरेंट्स का रिलेशनशिप इज नॉट गुड तो वहां से बच्चा क्या सीखता है, वहां से बच्चा नेग्लेक्टेड भी फील करता है, अफ्रेड भी फील करता है, एंड ही वाज वेरी अनसर्टेन अबाउट द सिचुएशन एंड द पर्सन्स. वहां से उसमें ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि जब भी जिस पेरेंट के पास जाएगा अपने कंसर्न्स लेके, वो एजिटेटेड है, तो दे विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. और अभी भी अगर आप हमारी एरिया में, हमें ये बोलते हैं पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को, कि यू डोंट अंडरस्टैंड द चैलेंजेस कि हम क्या फेस कर रहे हैं. आपके टाइम में बच्चे अलग तरीके से पलते थे, अभी हमारा चैलेंज, लेकिन चैलेंजेस हमारे पेरेंट्स के साथ भी थे, क्योंकि टाइम के साथ साथ हर टाइम चेंज हुआ है सर, हर दिन चेंज हो रहा है. इट्स नॉट अबाउट कि टेक्नोलॉजी ही जस्ट एक रिस्पॉन्सिबल है. समहाउ विद द टेक्नोलॉजी वी आर लूजिंग द एक्चुअल रोल ऑफ अ ह्यूमन, कि हमारा एज ए ह्यूमन हमारा क्या इंपॉर्टेंट रोल है, दैट वी आर ट्राइंग टू रिप्लेस विद द हेल्प ऑफ गैजेट्स, with the help of taking the extra services like the maid and the caretaker. I'm not saying कि don't hire them, but still you need to make sure there should be a well connected and strong bond between your child and you. ये पॉसिबल नहीं है अगर आपने मेड दे दी, आपने वीकेंड्स पे बच्चे को घुमाने ले गए, साल में आपने 2 वेकेशन करा दी, तो योर चाइल्ड विल बी अटैच्ड टू यू. यू आर टेलिंग देम कि दैट कमर्शियल things are important and you need to enjoy them and just let it be. So we are implant some kind of materialistic importance in their mind. The materialistic things are important. तो वहां पे सर सोशल बिहेवियर का तो एक कॉन्सेप्ट ही मेरे ख्याल से नल एंड वॉइड हो जाता है. तो क्योंकि I tell you ना, reaction अभी it's not about child and the parents. You as a senior you understand there is a 2 words and they are very powerful.
वन इज रिएक्ट एंड सेकंड इज रिस्पॉन्स। एब्सोल्युटली। है ना, अगर हमें पता है वेयर टू रिएक्ट and how to respond a situation, then we can manage anything in our life. Absolutely, well said. Yeah. फिर तो कोई चैलेंज ही नहीं है। चैलेंज नहीं है। अभी हाँ, हमारे टाइम में मेंटल वेलनेस वर्ड क्यों नहीं सुनाई देता था? बिकॉज वी आर बिजी in playing, Correct. in friendship, we have siblings, Hmm. and we need to help our parents in the small kind of things कि Right, अभी ये right, कर right. लो, अभी वो कर लो। Right. एंड स्कूल जा रहे हैं तो मोस्टली, आप भी पता नहीं मुझे, हाँ जी, लेकिन हमें पैदल ही जाना पड़ता था। हाँ, We don't have हम लोग भी गांव में ही है, सो पैदल जाते थे, पैदल आते थे, या थोड़ा बड़े होने के बाद साइकिल में जाना चालू किया है ना, सो हाँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आवर माइंड एंड आवर बॉडी वाज एंगेज्ड। अभी गैजेट्स के साथ क्या है? ओनली माइंड इज एंगेज्ड, हाँ जी, body is not body doing is not anything. yeah, well said. So I mean, if we don't understand the relationship between mind and body, yeah, then of course social behavior or social development of child will be not good. अभी आप देखते होगे पेरेंट्स, इवन द होम मेकर्स, इट्स वेरी इजी। इफ बच्चा तंग कर रहा है, मैं किचन में काम कर रही हूँ या मुझे कुछ काम करना है, मुझे मीटिंग करनी है, तो बच्चे को लैपटॉप दे दो। अभी फिर पेरेंट्स कहते हैं कि आई एम वेरी सरप्राइज, मेरा बच्चा ना, ही इज वेरी स्मार्ट, माई किड इज वेरी स्मार्ट, ही नो हाउ टू ऑपरेट अ फोन। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑब्वियसली जिस चीज का कंट्रोल बच्चे के हाथ में है, वो उसको एंजॉय करेगा। तो दैट यू नीड टू फाइंड आउट अ डिफरेंट वे कि कैसे मुझे अपने बच्चे को एंगेज करना है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट द एक्टिविटी, ईच एंड एक्टिविटी मेक श्योर कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कितना कनेक्टेड रह पाता है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हर एज पे हर बच्चे के फियर्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, छोटा बच्चा एकदम से चौंक जाता है, ठीक है, तो हम मेक श्योर कि उस पे हाथ रखे रहे, क्योंकि अगर वो ऐसे डर रहा है, अगर मम्मी ऐसे ही छोड़ दे तो वो रोएगा, तो धीरे धीरे उसमें फियर कॉम्प्लेक्सेस आ जाएंगे। जैसे जैसे वो बड़ा होगा कि कुछ भी अननोन हुआ, जैसे बच्चा लाउड वॉइस से बचपन में अगर है, तो मदर मेक श्योर की आवाज कम हो, और उसको टच, हम एक तरह से उसको क्या बोलते हैं, टच थेरेपी, करेक्ट है ना। आज के टाइम में सर अब साइकोलॉजी को यूज करने लगे। पहले तो हम तो ये कहते थे ना कि बच्चा अपनी माँ की गोद में सेफ एंड सिक्योर फील करता है, दिस इज टच थेरेपी इन सिंपल। अगर उसको साइकोलॉजी में लोगे तो इट वाज अ टच थेरेपी ना। अभी फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसमें जैसे छोटे बच्चे में, 6 साल तक के बच्चे में, देयर इज नो फियर ऑफ एनीथिंग। आपने भी देखा, हम बच्चे को ऊपर उछालते हैं, है ना, ऊपर उछालते हैं, उनको डर नहीं होता उसमें। वो धीरे धीरे 6 महीने के बाद वो डर वाली चीज उसमें आने लग जाती, तो वो वुड बी वेरी केयरफुल। अच्छा, फिर हमारा जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो, तो उसके फियर्स अलग अलग हो जाते हैं, उसके स्ट्रगल्स अलग हो जाते हैं। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन द ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ अ चाइल्ड। ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं, इसको कोई नहीं है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने ये प्रोफेशनल अपनी प्रैक्टिस में आई हैव लर्न दैट एंड आई हैव सीन कि 6 महीने साल भर के बच्चे के जब हमारे पास आते हैं, कई बार केसेस में देखती हूँ कि वहां पे बच्चे में कोई फोबिया डेवलप हो गया, कोई फियर डेवलप हो गया। पेरेंट्स कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, एवरीथिंग वाज फाइन, कहाँ से आ गया। लेकिन जब वो पूरा असेसमेंट्स लिया जाता है, किस तरह के एटमॉस्फेयर में वो बच्चा बड़ा हुआ, क्या सिचुएशन थी, फैमिली में क्या रह रहा था, तो समटाइम्स इट्स पॉसिबल कि बच्चे की उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत छोटा है, बट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस दे कैन डेवलप सम फियर एंड फोबियाज एज वेल। तो वी आर नीड टू बी वेरी केयरफुल कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर टॉकिंग। लाइक छोटा सा एग्जांपल है डोमेस्टिक वायलेंस का। अगर पेरेंट्स आपस में बहुत लड़ते, छोटा बच्चा, उसका सिर्फ विजुअल है उस टाइम ज्यादा फोकस, छोटा है, तो वो विजुअल देख रहा है, वो देख रहा है कि माँ बाप में सिर्फ लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है, तो वो बड़ा होके या तो वो बहुत ज्यादा कावर्ड काइंड ऑफ पर्सनालिटी होगा, या वो बिल्कुल ही एक एंटी सोशल काइंड ऑफ पर्सनालिटी होगा। क्योंकि उसने देखा ही यही है ना, या तो वो डर के रहेगा मदर की तरह, या वो फादर की तरह, या जो भी स्पाउस करता है फिजिकल अब्यूज, उसकी तरह वो जंगलीपन करेगा ना। तो each and every point पे we need to very careful till the age of 13 or 14.
even the 16, I will say, they need to be taken care very delicately. They are very sensitive people till the 16. क्योंकि उसके बाद 3-4 years का होगा, तब उसको डेवलप करना है, ऐसा सॉरी 2 to 3 में एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, एंजाइटी, सेपरेशन एंजाइटी बेसिकली उसको अगर मैं एक तरह से लेबल करूं कि पेरेंट्स से दूर होना पड़ेगा, स्कूल जाना है, तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, बहुत रोते हैं, नॉट एबल टू फोकस, तो उस टाइम भी ऑफ कोर्स दे नीड यू। तो ये सारे यहीं से तो हमारे सोशल बिहेवियर हर एज पे हम सिखाते जा रहे हैं बच्चे को, क्योंकि you need to take care of yourself, you need to be self reliance, you need to be self confident। क्योंकि जिस दिन बच्चा मेरा चाहे प्ले स्कूल में भी गया, फर्स्ट डे वो अकेले अगर वो आधा घंटा भी गुजार रहा है, दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर हिम। हमारे लिए तो प्रोसेस है कि बच्चा ने जाना ही जाना है नर्सरी, बट फॉर हिम उसके लिए एक बहुत बड़ा एक मेंटल यू कैन से स्ट्रगल है दैट डे। अब वो मेक श्योर करना है हाउ यू आर डीलिंग विद दैट सिचुएशन। अभी कि डांटना या नेगेटिव फ्रेजेस यूज करना या उसको बोलना नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को बता दूंगी, या मैं अगर ऐसा बिहेव करोगे, तुम कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारी मैम को बता दूंगी, यू आर अ बैड बॉय और अ बैड गर्ल। इन दैट वे वी आर क्रिएटिंग अ नेगेटिव वोकैबुलरी इन द माइंड ऑफ अ चाइल्ड। तो वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, एनर्जीज आर वेरी पावरफुल। 7-8 में आते बच्चे रिलेशनशिप्स को लेके कि फ्रेंडशिप, नॉट इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, दे गॉट वेरी स्केयर्ड क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू लूज द फ्रेंड्स। कोई फ्रेंड बना और वो से बात नहीं कर रहा तो उनको लगता है कि वो लेफ्ट आउट फील करने लग जाते हैं। 9-10 में जाके दे बिकम वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स बॉडी। अभी ठीक है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा बच्चा किस एज में, ये तो कॉमन है, दीज आर कॉमन, but nowadays things are changing, like they are growing very fast। एक बच्चे को 6 साल के बच्चे को आज देखो और अगर 6 साल पहले का एक 6 साल का बच्चा होगा तो there is a lot of difference between the mindset। तो being a parent you need to invest your time। तो टाइम देना बहुत सिंपल इज दैट। किस चीज पे मेरा बच्चा लैक कर रहा है ताकि मैं उस पर काम करूं। एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं आज के टाइम में बहुत देखती हूँ, किड्स आर हैविंग वेरी मेजर प्रॉब्लम दे आर हैविंग कि स्पीच डिले बहुत हो रहा है। अब पेरेंट्स आर, हाँ, अब वो स्पीच डिले के समटाइम्स रीजन ये भी होता है कि दे डोंट हैव एनीवन टू टॉक अबाउट इट। मम्मी बिजी है अपने काम में, पापा बिजी हैं अपने काम में। अगर मुझे स्पीच का एक्सपोजर नहीं हो रहा तो मेरा ब्रेन डेवलपमेंट वैसा नहीं होगा जो होना चाहिए। इसीलिए व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, इफ यू हैव सीन कि आपने गांव में भी देखा होगा, अभी पेरेंट्स अभी भी खिलौने लाते हैं, लेकिन अभी क्या है, सिर्फ खिलौने और गैजेट्स होते हैं। हमारे टाइम में मम्मी काम कर रही है, बच्चा नीचे लेटा हुआ है, या तो वो अपने खिलौने से खेल रहा है या उसकी आवाज सुन रहा है, या मम्मी कुछ ना कुछ बोले जा रही है आवाज से। तो है ना, both were interacting each other। हाँ, दे आर। तो वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। एक बड़ी अच्छी एकदम से सडनली मुझे याद आई, यू ऑब्वियसली जितने भी लोग देख रहे होंगे इनको शायद अवेयर होगा अबाउट अर्जुन का बेटा, हाँ जी, जिसने चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था, अभिमन्यु। क्योंकि अभिमन्यु सिर्फ लास्ट स्टेज क्यों नहीं सुन पाया, क्योंकि मदर्स हो गई थी, करेक्ट, है ना। तो सर आप ये देखो, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ क्योंकि मदर जब तक जाग रही थी, सेंसेस ऑफ अटेंटिव, तब वो वहां से सीख के आया था। तो अगर जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया है तो मैं उसके साथ कैसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, कैसे बिहेव कर रही हूँ, तो मैं सोचिए मैं क्या कर सकती हूँ उस बच्चे के साथ। तो दिस इज द पावर ऑफ पेरेंटिंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ना बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपने दिया है ना। आई मीन मदर फादर दोनों का बॉन्डिंग बच्चे के साथ शुरू से अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, एंड स्पेशली ड्यूरिंग दीज डिजिटल डेज, वेयर बच्चा पैदा होते ही मोबाइल पकड़ा देते हैं हम लोग, दैट इज आई थिंक इट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स, हाउ you are actually developing your social skills in a child, right? नहीं तो जैसे बताया कि इट विल बी ऑटोनोमस मोनोटोमस हो जाएगा। जैसे आपने एग्जांपल दिया, हमारा टाइम पे बच्चा नीचे लटा हुआ है विद सम खिलौना,
माँ अपना काम कर रही है, बट बोथ आर आदान प्रदान हो रहा है, ये कुछ बोला था, हाँ बच्चा ठीक है, ये वो भी सो दैट। एंड हम लोग जैसे कि नो आई मीन सिबलिंग थे, हमारा जॉइंट फैमिली था, सो इट वाज ए डिफरेंट। तो मुझे थोड़ा सा आपका, आई नीड योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स और एडवाइस टू पेरेंट्स। आज की दुनिया में जो दोज आर बिकमिंग पेरेंट्स नाउ, और मे बी यंग किड्स, उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? फ्यू पॉइंट्स। सर, सबसे ज्यादा तो पेरेंट्स को पहले खुद का ध्यान रखना चाहिए ओके। एज ए इंडिविजुअल एंड द इंडिविजुअल। अगर वो हर टाइम एक ही चीज को सोचते हैं, जैसे है, आई एम नॉट सेइंग कि वर्क के चैलेंजेस नहीं है या वर्क स्ट्रेस नहीं है। वर्क चैलेंजेस पहले भी थे, वर्क चैलेंजेस आज भी हैं। आज भी स्ट्रेस पहले भी था, स्ट्रेस आज भी है। हर मतलब हर ईरा में हमारे मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ या उससे पहले भी सबको स्ट्रेस रहा है। सबके पास वही 24 घंटे होते थे, सबके पास वही 24 घंटे होते थे। तो फर्स्ट यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट सम मिनट्स ऑन योरसेल्फ। आई एम नॉट saying कि on the daily basis, but whenever you can, you need to। क्योंकि आप जब तक खुद अपने आप को नहीं समझेंगे, अपने इमोशन रेगुलेशंस को करना नहीं सीखेंगे, देन ऑफ कोर्स आप कुछ भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे लाइफ में। सेकंड है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी, what kind of word you are using for yourself, and what kind of word you are using for your spouse or the family member, and what kind of vocabulary you are using for your child। अगर मैं अपने बेटे को हमेशा रोज बोलूं तो नालायक है, तू तो नालायक है, तू तो नालायक है, उसके सर ये सबकॉन्शियस में बैठ ही जाएगा कि मैं नालायक हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो करने की कोशिश भी नहीं करेगा। सेकेंड थिंग, वी आर नॉट सेइंग कि आप उनको गैजेट्स मत दो, क्योंकि दैट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि अब आ गया है कि टाइम है टेक्नोलॉजी का, तो हमें उनको टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराना है, बट मेक श्योर कि वो टाइम इतना ज्यादा ना हो कि आप उससे अपने पर्सनल टाइम को देने से बचने के लिए आप एक सब्स्टिट्यूट मत ढूंढिए। ठीक है, आप टाइम फिक्स उसके लिए करिए, अपने लिए मत करिए कि मैं वीकेंड में घुमाने लेके जाऊंगा और तुम बाकी दिन तुम वीडियो गेम खेलो या तुम लैपटॉप पे कुछ भी देखो। नहीं, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स यू नीड टू स्पेंड विद योर चाइल्ड। अगर आप अपने बच्चे के साथ 5 मिनट भी स्पेंड कर रहे हैं ना, पेशेंस तो खुद ही रखना सीख जाएंगे, जो लूज हो गए हैं, सोशल स्किल वापस आ जाएगी, और स्ट्रेस भी आपका कहीं ना कहीं चला जाएगा। एंड एक चीज पेरेंट्स हमेशा मान के चले, ये बात को समझे, once your child will become 17 or 18 years old, वो आपको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसको आगे पढ़ने के लिए जाना है। फिर आपके पास मेमोरीज भी क्या रहेंगी? क्या किया आपने अपने? कुछ भी नहीं। तो फिर रील्स और वीडियोस तो हम तब भी देख लेंगे। तो इट्स बेटर टू स्पेंड टाइम विद योर चाइल्ड, एंड इट्स नॉट अबाउट वेकेशन, इट इज नॉट अबाउट शॉपिंग, इट्स मच मोर देन दैट। उनके साथ बैठिए, रोज बात कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम कि व्हाट दे आर सीइंग, वो क्या देख रहे हैं स्कूल में, वो क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स में, वो आपके बच्चे का थॉट प्रोसेस कहाँ डेवलप हो रहा है, आपके बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ डेवलप हो रहा है, दैट पर्सन, आपके बच्चे को गाइडेंस अगर देनी है तो कहाँ पे देनी है। अभी पेरेंट्स क्या करते हैं, 10th के बाद आ जाते हैं करियर काउंसलिंग पे। करियर काउंसलिंग बच्चे को खुद को ही नहीं पता, इंटेलिजेंस के बेसिस पे हम उसको सजेस्ट कर देंगे ये ले लो। लेकिन कुछ कुछ जगह पेरेंट्स को भी अपना रोल समझना पड़ेगा। दे आर, ये सिर्फ ये नहीं है कि शादी कर ली, बच्चा पैदा कर दिया क्योंकि करना था। इट्स नॉट लाइक दैट। जब तक आप बच्चे को सेल्फ सफिशिएंट, अब सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट का मतलब यहाँ पे मॉनेटरी नहीं है। इट्स नॉट अबाउट द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, प्रॉपर्टी देने का। आप अपने बच्चे को कितना मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग और फिट बनाते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके लिए आपको ध्यान देना है। इसीलिए आई अप्रिशिएट कि हमने इसको, इस सीरीज को आगे हम बढ़ा रहे हैं, ताकि हम आगे इनको क्योंकि हम धीरे धीरे पेरेंट्स को हेल्प कर सके टू अंडरस्टैंड कि एक पॉइंट पे, आज जैसे हमने बात की सोशल पे, कॉग्निटिव ग्रॉस मोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि आगे व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटल वेलनेस, ताकि लोगों को समझ में आए कि व्हाई वी आर डूइंग दिस,
absolutely, पेरेंटिंग वर्कशॉप हम कर क्यों रहे हैं? बिकॉज वी वांट यूर बिकम अ सक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल तो वर्ड मैं एक्चुअली नहीं करूंगी, सेटिस्फाइड पेरेंट एंड अ हैप्पी पेरेंट। सुपर सक्सेस सुपर। का तो सर कोई मापदंड नहीं है ना कि हाँ मैं जी, हाँ कितना जी, हाँ जी। सक्सेस हुई। हाँ, मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ, मैं कितना हैप्पी हूँ अपने काम को लेके, वो है कि मैं कभी भी उस स्टेज पे ना हूं कि मेरे को मेरा बच्चा सफर करता हुआ दिखे, उसके लिए मैं खुद को ब्लेम करूं या मैं बच्चे को ब्लेम करूं। मैं वो वाला कभी भी अपनी लाइफ में मोमेंट ना अपने में, ना मैं चाहूंगी कोई भी पेरेंट्स उस मोमेंट से Super. गुजरे। No, well said, दैट well इज said. माई मेन यू कैन से एम टुवर्ड्स द पेरेंटिंग। Superb, superb. Great insights, Payal ji. I appreciate your time, and I hope it helps to all the parents listening to this session. And yes, we have time constraint this time, but yes, as I told, we will have separate session, next session coming up, and I think that we will discuss about how we can nurture children's mental health. So yeah, so till then I again I thank you, Payal ji, taking time and to talk to me and give your insights and tips, child development. Of course, looking forward to see you next, maybe next week. And till then, I think namaskar to everybody and namaskar to you, Payal ji. And yeah, see you soon. Bye. श्योर सर। Bye.